بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جب بھی کبھی کوئی اپنے نفس کے بہکاوے میں آیا ہے، ہمیشہ نقصان سے دو چار ہی ہوا ہے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہو تو جذبات بھی نئے نئے سے لگتے ہیں، دل بغاوت پر آمادہ ہونے لگتا ہے، حلال حرام غلط صحیح کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا، بس نفس کی پیروی میں ایسی راہوں کا مسافر بھی بننا پڑتا ہے انسان کو جس کے خطرے سے بہت پہلے ہی خبردار بھی کر دیا گیا ہو، مگر دل نہیں مانتا۔ یہ وہی کرتا ہے جسے کرنے کے اسے اطمینان ملے۔ میں بھی ایسے ہی موڑ پر کھڑی تھی جہاں نفس کی خواہش کے آگے میرا وجود مٹی ہو گیا تھا۔ میں بھی وہی کرنا چاہتی تھی جس بات کے لیے میرے اندر کا شیطان مجھے آمادہ کر رہا تھا، مگر پھر جو میرے سامنے کا منظر تھا اس نے میری دنیا ہلا دی۔ اس وقت بھی میں بے باک لباس میں موجود تھی، میں نے کپڑے بدلنے کی بھی زحمت نہیں کی اور اسی حلیہ میں کچن میں پہنچ گئی۔ میں اس مرد کو جتنا بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، وہ ہر بار بری طرح جھٹک دیا کرتا تھا، حالانکہ اس بڑے سے گھر میں میرے اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ مجھے جنم دیتے ہی جہان فانی سے رخصت ہو گئی تھی۔ باپ کی صورت میں ہی سارا پیار دیکھا تھا اور وہ لمبے عرصے تک ساتھ نہیں رہے، بلکہ پردیس میں جا کر مقیم ہو گئے۔ جانے سے پہلے میرے والد نے ایک 50 سالہ مرد کو گھر میں ملازم کے طور پر رکھ لیا تھا۔ میں سارا دن اس ملازم مرد کے ساتھ گھر پر اکیلی رہتی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو میں اس مرد ملازم کو اپنے ارد گرد دیکھتے رہنے کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہونے لگی، مگر نہ جانے وہ کس مٹی کا بنا تھا کہ مجھ جیسی حسین اور کم عمر لڑکی کو اکیلا پا کر بھی متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی جتنی کوشش کی، ہر بار ناکام رہی۔ آج پھر میں جان بوجھ کر ایسا لباس پہن کر اس کے سامنے گئی اور اس سے بولی کہ مجھے کھانے میں کچھ اچھا سا بنا کر دو، تو وہ ایک نظر مجھے دیکھ کر نظریں جھکا گیا اور بولا کہ میں آپ کے کھانے کی ہی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے اس کی اتنی فرمانبرداری پر غصہ آنے لگتا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں ہر بار تب اس کے سامنے جاتی ہوں جب وہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، تو وہ بآسانی مجھے نظر انداز کر کے اپنے کام میں مگن ہو جاتا ہے۔ میں اسے فارغ وقت میں اپنے سامنے لانا چاہتی تھی۔ ایک شیطانی خیال آتے ہی میں مسکرائی اور اس سے بولی کہ ناشتہ میرے کمرے میں مجھے لا دینا، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ میری بات پر وہ ٹھٹک گیا، کیونکہ آج تک چاہے وہ اور میں گھر پر اکیلے رہتے تھے، مگر ہمیشہ وہ کمرے کی حد سے باہر ہی رہا تھا اور اکیلے کمرے میں کبھی داخل نہیں ہوتا تھا، مگر آج میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ میں کمرے میں جاتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ مرد ہی تھا، چاہے جتنا بھی مضبوط بن جائے، مجھ جیسی حسین لڑکی سے زیادہ دیر اعتراض نہیں برت سکتا۔ کمرے میں جا کر میں صوفے پر لاپرواہی سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزری تو وہ کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ وہ جھجک کر کمرے میں داخل ہوا اور کھانا میرے سامنے رکھ کر جانے لگا، مگر اچانک میں نے اسے روک لیا اور اس سے بولی کہ تمہیں کام کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ اگر تم اکیلے کام کر کر کے تھک جاتے ہو تو میں کسی اور ملازم کا بندوبست کر سکتی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اسے بات کرنے کے لیے روکا تھا تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہو، مگر وہ ہاتھ باندھے سر جھکا کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا کہ میرا اتنا کام نہیں ہوتا، ہم گھر میں کسی بھی دوسرے ملازم کو نہیں رکھ سکتے، آپ کے والد نہ جانے سے پہلے سختی سے منع کر گئے تھے۔ میں اس کی بات پر حیران ہوئی اور بولی کہ ایک بات مجھے اب تک حیران کرتی ہے، تم بتا سکتے ہو؟ اس سوچ کا آخر میں کیا کروں؟ وہ میرے سوال پر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں بولی کہ میرا باپ نے مجھے ہمیشہ آزادی کی زندگی دی ہے، مگر اتنی آزادی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے والد مجھ جیسی جوان اور کم عمر لڑکی کو اکیلے اس گھر میں تمہارے حوالے کر کے چلے گئے۔ انہیں کسی ملازم پر کبھی اعتبار نہیں رہا تھا، تو پھر تم میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ تم پر اعتبار کر گئے؟ میرے سوال پر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا کہ یہ تو آپ کے والد ہی بتا سکتے ہیں، میرا کام آپ کی حفاظت کرنا اور گھر کی رکھوالی کرنا ہے، اور وہ میں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہو تو آپ مجھے بتائیے گا۔ وہ یہ بول کر جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اچانک بولی مجھے تم سے بہت سارے گلے شکوے ہیں۔ میری بات پر وہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میں بہت سخت گیر رہی تھی اور ہر وقت اس کی عمر کا لحاظ کیے بغیر اس پر روب جھاڑتی تھی، اس لیے وہ میری بات پر پریشان ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ میں اس کے کام سے خوش نہیں ہوں، جبکہ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ وہ پریشانی سے بولا کہ کیا شکایت ہے؟ میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو،
मैं उससे बोली कि मुझे रात को इस घर में अकेले डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथ कोई मुलाजमा भी रख लूँ। मैं अकेली अब घर के अंदर नहीं रह सकती और तुम काम करके क्वार्टर में चले जाते हो। मेरे मुतालबे पर वो सोच में मुब्तला हो गया था। मैं जानबूझकर उसे ज्यादा वक्त अपने कमरे में रोके हुए थी। मुझे यकीन था कि वो ज्यादा देर मेरे हुस्न से नजर नहीं चुरा पाएगा। खाना मेरे सामने वैसे ही रखा हुआ था और मेरी तवज्जो उस मुलाजिम पर थी। अभी हमें 2 मिनट ही हुए थे कि मेरी नजर उसके चेहरे से होते हुए नीचे गई तो मुझे झटका सा लगा था। मैं हक्का बक्का सी उसे देखने लगी थी। मेरी नजरों का मरकज देखकर वो वहां शर्मिंदा हुआ और खफ्फत से पहलू बदलते हुए बोला कि आप इससे मुतल्लिक मुझसे नहीं अपने वालिद से बात करें तो बेहतर होगा। ऐसा बोलकर वो तेजी से कमरे से निकल गया, जबकि मैं अपनी जगह जमी बैठी रह गई थी। वो मर्द बज़ाहिर जो नजर आता था वैसा नहीं था। मैं सोच में मुब्तला हो गई। मुझे सब कुछ भूल गया। मेरे दिमाग से वो मंजर नहीं जा रहा था। मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गई थी। मैंने छुप छुप कर उस पर नजर रखना शुरू कर दी। अगले रोज भी इसी तरह मैंने उसे कमरे में बुलाने की कोशिश की तो वो साफ टाल गया और मुझसे बोला कि मैंने अपनी कुछ जरूरत का सामान लेने जाना है, आप यहीं पे खाना वगैरह खा लें। मुझे उसके जवाब ने हैरान कर दिया था, मगर अब जाने क्यों मैं उस पर हुक्म नहीं चला सकती थी। तभी एक रोज रात के वक्त मेरी आंख खुली तो मैं इस मुलाजिम का ख्याल आने पर बिस्तर से निकली और कमरे से निकल गई। मैं इस मुलाजिम के क्वार्टर में जाकर देखना चाहती थी कि वो कैसे जिंदगी बसर कर रहा था। मैं जानती थी कि वो क्वार्टर में अकेला रहता था। मैं इसकी शख्सियत का राज जानना चाहती थी। अभी मैंने क्वार्टर की जानिब कदम बढ़ाए थे कि मैंने देखा कि वो अपने क्वार्टर से निकलकर बहुत राजदारी से दरवाजा बंद कर रहा था। अभी गहरी रात हुई थी। इस वक्त उसे अपने कमरे में आराम करना चाहिए था, मगर वो अपने कमरे से निकलकर जाने कहाँ जा रहा था। मैं छुपकर उसे देखने लगी, तभी वो कदम बढ़ा रहा था और घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं चौंक गई। वो दबे कदमों से मेरे कमरे की जानिब जा रहा था। फिर आहिस्तगी से उसने मेरे कमरे का दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। मेरी रूह फना हो गई। अब वो यकीनन जान लेता कि मैं कमरे में नहीं हूँ। मैं घबराई हुई सी तेजी से किचन की तरफ बढ़ी और लाइट जलाकर पानी का जग भरने लगी। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक थोड़ी देर बाद वो परेशान सा मुझे तलाश करता हुआ किचन में पहुंच गया और फिर मुझे देखकर सुकून का सांस भरता हुआ बोला कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको कमरे में ना पाकर परेशान हो गया था। मैंने चौंक कर उसे देखा और उससे बोली कि तुम मेरे कमरे में मुझे देखने गए, क्यों? और वो भी इस वक्त। मेरे सवाल पर वो गड़बड़ा गया और अचानक उसे एहसास हुआ था कि वो मेरे सामने क्या बात कर गया है। वो घबरा कर बात बदलते हुए बोला कि मैं तो आपसे यही पानी का पूछने आया था। मैं पानी का जग रखना भूल गया था तो सोचा कि आपको पानी की बोतल दे आऊं। मैंने ठटक कर उसे देखा, क्योंकि मैं तो पानी के जग का सिर्फ बहाना कर रही थी, वरना मेरे कमरे में पानी का जग मौजूद था। मुझे उस शख्स पर शक होने लगा। वो खामोशी से अपने क्वार्टर की जानिब बढ़ गया था। मैं भी अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके कितनी देर उसके बारे में सोचती रही। आज से पहले मैंने उसे सिर्फ मुहतात अंदाज में घर में काम करते हुए देखा था। वो दिन में भी मेरे कमरे में कभी दाखिल नहीं हुआ था। कभी भी किसी भी काम के लिए उसने मेरे कमरे तक आना मुनासिब नहीं समझा था। इतना मुहतात रहने वाला शख्स रात के वक्त मेरे कमरे में क्या करने आया था? मैं इसकी तवज्जो चाहती थी, मगर इस बार इसकी हरकत मुझे परेशान कर गई थी। तकरीबन रात इन्हीं सोचों में गुजर गई। अगली सुबह भी मैं इस पर गौर करती रही। मुझे वो एक पुरस्कार शख्स लग रहा था। वो आज भी मेरे सामने वैसे ही नजरें झुकाकर एहतियात से बात कर रहा था और मुझे खाना देकर घर का काम करते ही वो अपने क्वार्टर में चला गया था। अगली रात मैं लाशौरी तौर पर जागकर पहलू बदलती रही। मैंने सोच लिया था कि अगर वो दोबारा कमरे में आया तो मैं उससे सवाल करूंगी ताकि उसका पता चले। मैं उसकी इस हरकत से वाकिफ हो चुकी थी। वो मुझे रातों को सोया हुआ पाक कर क्या करने आता था। अभी मैं यही सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमरे के दरवाजे के पास कदमों की चाप महसूस हुई। मैं जल्दी से सोने की अदाकारी करने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वो मुलाजिम मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं सोने की अदाकारी करते हुए अंदर ही अंदर डर रही थी। सच तो ये था कि मैं कोई बदकिरदार या बेबाक लड़की ना थी। मुझे इस मुलाजिम में बहुत कशिश महसूस होती थी, इसलिए मैं इसकी तवज्जो हासिल करने की बेजरर सी कोशिशें करती रही। मगर मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरी इज्जत पर हाथ डालने के या अकेलेपन का फायदा उठाना चाहेगा। अब भी मैं अकेले कमरे में पड़ी थी और उसे बिस्तर की तरफ आता हुआ महसूस करके डर रही थी। मुझे अपने बाप पर अफसोस हो रहा था जो अपनी जवान बेटी को गैर मर्द के हवाले कर गया था और इस पर इतना एतबार किया हुआ था कि घर में और कोई मुलाजिम भी रखने नहीं दिया था। वो मुलाजिम बिस्तर के करीब आया और फिर रुक गया। मेरा दिल खौफ से लरज रहा था, मगर उसकी अगली हरकत ने मुझे हैरत से सख्ता ज़दा कर दिया था। कुछ देर बाद वो गया तो मैं गुमसुम पड़ी रह गई थी। अगली सुबह जाग कर भी
मेरा दिमाग सोचों में उलझा रहा था। इस मुलाजिम ने मुझे खाना देने के लिए अचानक मुखातिब किया तो मैं बुरी तरह डर गई और घबरा कर इसे देखने लगी। वो मेरी हरकत पर ठटक कर मुझे देखने लगा। मैं जल्दी से बोली कि मुझे भूख नहीं है, तुम खाना रख दो, मैं कुछ देर तक खुद खा लूंगी और तुम चले जाओ। मैं उसे ऐसा बोलकर तेजी से अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं पहले की तरह अब इस शख्स की मौजूदगी में नॉर्मल नहीं रह पा रही थी। मुझे बार बार इस मुलाजिम के साथ की जाने वाली हरकत याद आ रही थी। अगली रात भी वो मुलाजिम इसी तरह मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया। मैं सोती बन गई, हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं इससे सवाल करती और इससे पूछती कि वो रात भर क्या करता रहता है, मगर मैं तो इतना भी पूछ नहीं पाई थी। मैं जो छोटी छोटी बात पर उस पर हक जताती थी और उसे हुक्म देती थी, यहाँ सब कुछ देखकर भी सवाल नहीं कर पा रही थी। अब रोजाना यही सब चलने लगा था। मेरे वालिद के फोन आते ही मैंने सब अच्छा है बोल देती थी, मगर दिन ब दिन मेरी परेशानी बढ़ने लगी थी। एक रात इसी तरह वो मुलाजिम मेरे कमरे में रुकने के बाद जब जाने लगा तो मैं दबे पांव उठकर उसके पीछे गई और तब देखा वो घर से निकलता हुआ अपने क्वार्टर में जाने की बजाय बैरूनी गेट की तरफ गया था। मैं ये देखकर ठटक गई, वो रात के वक्त जाने कहाँ जा रहा था। मैं रात भर उसका इंतजार करती रही, मगर वो वापस ना आया। नींद मेरी आंखों से वैसे ही रूठ चुकी थी और खौफ की वजह से मुझसे अब सोया भी नहीं जा रहा था। ऊपर से इस मुलाजिम की दिन ब दिन की जाने वाली मशकूक हरकतें मुझे डरा रही थी। मैं वहीं बाहर सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी और जब फजर की अजानें बुलंद होने लगी तब बैरूनी दरवाजे पर खटका हुआ। मैं चौंक कर उठी और बाहर देखने लगी। वो मुलाजिम घर में दाखिल हो रहा था। मैंने हैरत से उसका हुलिया देखा। उसके लिबास पर कहीं कहीं खून लगा हुआ था और वो बुरी तरह थका हुआ था। वो मुहतात कदम उठाता हुआ अपने क्वार्टर की जानिब चला गया, जबकि मैं सोच में बैठी रह गई। न जाने वो रात को कहाँ चला जाता था और उसके लिबास पर वो खून कैसा था। उसकी शख्सियत मुझे मजीद उलझाती जा रही थी। मैं सच जानना चाहती थी, मगर उससे सवाल करते हुए मुझे अब डर लगने लगा था। जब तक मैंने रात को जाग कर उसका वो रूप नहीं देखा था, मैं मुतमईन रहती थी और मुझे लगता था कि वो अब एक बेजरर सा मुलाजिम है। मगर अब मैं उसको रात के वक्त जो मशकूक हरकतें करते हुए देख चुकी थी, मुझे इससे खौफ आने लगा था। उसका रोजाना रात के वक्त वही मामूल था। वो पहले मेरे कमरे में आता था और फिर कमरे से निकलकर घर से ही निकल जाता था, और जब वो फजर के वक्त घर वापस आता तो बुरी तरह थका हुआ होता था और इसके कपड़े भी खराब होते थे। इसके लिबास पर लगे खून के छींटे मुझे खौफ में मुब्तला कर रहे थे। मैं सोच सोच कर बुरी तरह परेशान रहने लगी थी। मैं फितरतन हसास लड़की थी। माँ का साया तो बचपन में ही उठ गया था, मगर मेरे वालिद ने मुझे बहुत नाजों से पाला था और किसी भी चीज से कभी महरूम नहीं रखा था। अब जब मैंने उस मुलाजिम को उलझा हुआ रवैया देखा, सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने वाला हो रहा था। मेरा चैन सुकून बर्बाद हो गया था, जिसकी वजह से मैं बीमार होने लगी थी। एक रोज मेरे वालिद ने फोन करके मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मैं रो पड़ी और अपने वालिद से बोली कि मुझे अपने साथ किसी और मुलाजमा को भी रखना है। मैं यहाँ अकेली इस मर्द के साथ नहीं रह सकती। मेरे वालिद मुझे समझाने लगे और बोले कि तुम्हें दुनिया का अंदाजा नहीं है। वो बोले कि गरीब लोग बहरूपिये होते हैं, वो बज़ाहिर कुछ और नजर आते हैं जबकि होते हैं। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए बहुत परेशान रहता हूँ। तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैं चाहता था कि तुम्हें अपने पास बुला लूं, मगर मैं वो भी नहीं कर पा रहा। लेकिन अब किसी अनजान शख्स पर एतबार नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ सिर्फ वही मुलाजिम रहेगा। मुझे अपने बाप की सोच पर हैरत होने लगी। न जाने वो इस मर्द पर इतना अंधा एतबार क्यों करते थे। मैंने अपने वालिद से कहा कि आपने ठीक कहा, दुनिया के दो रूप हैं। लोग चेहरे बदल बदल कर हम जैसों को पागल बनाते हैं। मैं भी इसीलिए इस मुलाजिम से डरने लगती थी। मैंने अपने बाप से कहा कि यह भी तो हो सकता है कि वो इतना अच्छा ना हो जितना मेरे वालिद को लगता है, मगर मेरे वालिद ने मुझे कहा कि मैं इस पर आंखें बंद करके एतबार कर सकता हूँ। इसके बारे में अगर कोई भी मुझे उल्टी सीधी बात कहेगा तो मैं कभी यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। मुझे उस पर पूरा एतबार है। अपने वालिद के इतने यकीन पर मैं मजीद परेशान हो गई। मैंने समझ लिया कि मेरे वालिद मेरी किसी बात को संजीदगी से नहीं लेंगे, जबकि मैं अपने वालिद को सच बताना चाहती थी। मैंने इस रोज बात करके इरादा बदल लिया, लेकिन अकेले में सोच सोच कर मैं परेशान होने लगी। इस मुलाजिम का अब भी वही मामूल चल रहा था। वो मजे से रात के वक्त घर में दंदनाता फिरता था और अपनी मर्जी से वापस आ जाता था। मुझे इस शख्स से अब डर लगने लगा था। मैंने अपने बाप को इशारों में बताने की बहुत कोशिश की, मगर मेरा बाप इस मुलाजिम के बारे में भी कुछ सुनने को तैयार ना था। एक रोज मैंने परेशानी से अपने बाप को कहा
कि इन्हें अपनी बेटी पर यकीन करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि ये मुलाजिम वैसा नहीं जैसा नजर आता है और छुपकर कोई मशकूक हरकतें जरूर कर रहा है। मेरे वालिद चौंक कर बोले कि क्यों, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्या करता है जो तुम्हें उससे खौफ महसूस हो रहा है। इससे पहले कि अपने बाप को कुछ बताती, अचानक उस मुलाजिम ने मेरे सामने चाय लाकर रखी और मुझे सख्त नजरों से देखने लगा। मैं बुरी तरह डर गई। मैंने बहाने से बात बदलकर कॉल काट दी तो वो बोला, अपने वालिद को उल्टी सीधी बातें करके परेशान मत करें। अगर आपको मुझ पर कोई शक है तो आप मुझसे खुद बात कर सकती हैं। आपको मुझ में ऐसा क्या मशकूक नजर आया जो आपको परेशान करता है और डराता है? मैंने आपके साथ कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की है और बहुत एहतियात से रहता हूँ, तो आप फिक्र मत किया करें। आपको मैं कभी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। वो शख्स बहुत नरमी से बात कर रहा था, मगर मैं जानती थी कि वो मुझे सख्ती से धमका रहा था कि मैं अपने वालिद को कुछ न बताऊं। मैं खामोशी से सर झुका गई। मैं अपने बाप को बताना चाहती थी कि मैंने इस मुलाजिम का ध्यान खुद से हटाने के लिए कहा कि मुझे इस पर कोई शक नहीं है, बस मैं तन्हाई और खौफ का शिकार हूँ और अकेली नहीं रह सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ और मुलाजिमीन रखूँ। मैंने वही बहाना फिर से दोहराया, मगर इस बार मैंने सच बोला था। मैं वाकई खौफजदा रहने लगी थी। वो मेरी बात पर सोचती नजरों से मुझे देखने लगा, फिर बोला कि परेशान ना हो, अब आपको डर नहीं लगने दूंगा। मैंने इस बार भी खामोशी से सर हिला दिया। मैं चाहती तो कमरे में बंद रहकर भी अपने बाप को बता देती, मगर अब मुझे मोहतात रहना पड़ा था। इस रोज कॉल के बाद वो मुलाजिम मुझ पर नजर रखने लगा। पहले वो काम करते ही क्वार्टर में बंद हो जाता था, मगर अब मैंने महसूस किया कि वो सारा दिन घर पर ही रहता था और मेरे इर्द गिर्द मंडलाता रहता था। रात को भी वो मेरे सोने से पहले 2 बार कमरे के बाहर आता था और कमरे में झांकता था। मुझे इस शख्स से शदीद उलझन होने लगी। बेबसी से मैं घुट घुट कर रोती रहती थी। अपने बाप की बात पर मैंने इन्हें अफसोस से देखा। वो इस वक्त भी बार बार मुझे यकीन दिला रहे थे कि मैं वो मुलाजिम बहुत अच्छा है। मैंने अपने बाप से कहा कि मेरी परेशानी यही मुलाजिम है। मैं इस शख्स की मौजूदगी में खुद को महफूज तस्वर नहीं कर सकती। वो मुझे परेशान करता है और रातों को डराता है। मेरे बाप ने हैरत से मुझे देखा और बोले कि बेटा, तुम गलत बयानी मत करो, मैं जानता हूँ वो शख्स ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि वो अजीब इंसान है। मैंने वालिद से कहा कि वो ऐसा ही है। वो रोजाना रात को मेरे कमरे में आता है जब मैं सो जाती हूँ। मेरी बात पर मेरे वालिद को झटका लगा। मैं रोने लगी और जानबूझकर उल्टी सीधी कहानियां बताने लगी। मैं चाहती थी कि अपने बाप को मैं किसी तरह इस मुलाजिम से दूर कर दूं, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं था। ये सच ही था कि रोजाना वो मेरे कमरे में आ रहा था और मेरी बेबसी ये थी कि मैं ना उसे रोक पा रही थी और ना ही किसी को बता सकती थी। और वो मुतमईन था कि शायद मैं इस बात से अनजान हूँ, हालांकि मैं उसकी सच्चाई जान चुकी थी। मेरी बातों ने मेरे वालिद को बुरी तरह परेशानी का शिकार कर दिया था। वो बोले कि मुझे माफ करना बेटी, मैंने इस पर अंधा एतबार किया। मैं नहीं जानता था कि वो इतना गिर सकता है। मेरे वालिद को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। वो गमज़दा से बार बार मुझसे बोलते कि शायद तुम्हें गलत फहमी हुई हो, शायद ऐसा कुछ ना हो, मगर मैंने अपने बाप को यकीन दिलाया कि यही सच है। मेरी बात ने मेरे वालिद को इतना परेशान किया कि वो इसी रोज तबीयत खराब करके अस्पताल पहुंच गए। मैं अपने बाप के लिए परेशान हो रही थी। मेरा वाहिद सहारा थे वो। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी जिंदा ना रह पाती। मैं अपने बाप के लिए रो रही थी जब अचानक वो मुलाजिम मेरे पास आया और संजीदगी से बोला कि क्या आपने अपने वालिद से कोई ऐसी वैसी बात की है जिससे वो परेशानी का शिकार होकर इस हाल को पहुंच गए हैं। मैं उसके सवाल पर घबरा गई कि वो मेरे वालिद हैं, मैं जब चाहूं उनसे बात कर सकती हूँ। वो अचानक गुस्सा हो गया और बोला कि तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था कि सोच समझ कर बोला करो। तुम्हारे वालिद दिल के मरीज हैं और बहुत बीमार रहते हैं। तुम्हें बता दूं कि ऐसी बीमारी की परेशानी की बातें इनकी जान भी ले सकती है। अगर वो बाप मर गया तो फिर तुम किससे ये बातें करोगी। वो न जाने क्यों इतना गुस्सा हो रहा था, जबकि मैं तो ये सुनकर घबरा गई कि मेरा बाप दिल का मरीज बन चुका था। मेरे वालिद 10 दिन बाद बेहतर होकर घर आए तो मैं गुमसुम सी हो गई और इनसे बोली कि मैंने आपसे सब झूठ बोला था, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें और वापस कवेत ना जाएं। मैंने अपने बाप को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर मेरा बाप बोला कि तुम मेरी तबीयत की वजह से घबरा रही हो तो बात मत बदलो। मैं इस मुलाजिम से जरूर सवाल करूंगा और उसे सजा भी दूंगा। मुझे अब ये यकीन नहीं आता कि वो इतनी गिरी हुई हरकतें करता रहा है। दुनिया में मुझे तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इसी पर एतबार था। इसने मेरा मान तोड़ा है। मैंने अपने बाप की बातों से परेशान होने लगी। वो बहुत बुरी तरह टेंशन का शिकार हो गए थे। मेरे वालिद मुलाजिम से बात करना चाहते थे और मुझे डर था कि मेरे वालिद इस बात से बात करने की जब कोशिश करेंगे तो वो इन्हें नुकसान पहुंचा देगा। मैंने अपने बाप को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे बाप ने मेरी एक ना सुनी। एक रोज मेरे वालिद ने मुझे जिद करके
शॉपिंग के लिए भेजा तो घर से निकलकर मुझे कई बार यही ख्याल आने लगा कि मेरे पीछे बाप इस मुलाजिम के साथ अकेला होगा। यकीनन इससे सवाल करेगा तो वो मुलाजिम मेरे बाप को नुकसान पहुंचा देगा। ये सोच सोच कर मैं परेशान हुई और शॉपिंग पर जाने की बजाय वापस घर चली गई। मेरी तवक्को के मुताबिक मेरे वालिद के कमरे से बोलने की आवाज़ें आ रही। मेरे वालिद गुस्से में थे और इस मुलाजिम से पास पुर्स कर रहे थे। मगर तब मेरे वालिद ने जो बातें की वो मेरे सर पर छत गिरा गई थी। मेरे वालिद इसको मुलाजिम से बोल रहे थे कि तुम जानते भी हो कि वो तुम्हारी अपनी बेटी है, तो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम रात के वक्त इसके कमरे में क्यों जाते थे? मैं तो इस जुमले पर हक्का बक्का रह गई थी। मैं इसी मुलाजिम की बेटी थी। मुझे अब अंदाजा हुआ कि मेरे बाप को इस मुलाजिम पर सबसे ज्यादा एतबार क्यों था। इस मुलाजिम ने मेरे वालिद को जो सच बताया वो मुझे शर्मिंदा कर गया। वो बोला कि मैं सिर्फ इसके कमरे में इसके सोने की यकीन दहानी करने जाता था, इसे चेक करके वापस लौट आता था। वो मुलाजिम सच बोल रहा था। वो रोजाना घर से बाहर जाता था। वो शायद यही बात छुपाना चाहता था, इसलिए मेरे सोए हुए होने की यकीन दहानी करता था। मगर हैरत इस बात पर थी कि वो घर से बाहर क्यों जाता था। तब मेरे वालिद के सवाल पर बोला कि मैं रात के वक्त जाकर एक कसाई के साथ गोश्त वगैरह बनवाने में मदद करता हूँ। मुझे काम की ज़रूरत है, इसलिए इस वक्त ये मेहनत करने जाता हूँ। इस काम की खबर मेरे वालिद को ना थी, इसलिए वो छुपाए रहा। मेरे वालिद गुस्सा हुए बोले कि बच्ची घर में अकेली छोड़कर तुम जाते रहे, तुम्हें पैसे का इतना लालच क्यों है? इस पर वो बोला कि मेरा घराना बहुत बड़ा है। बेटे की मौत के बाद से मैं इसके मासूम बच्चों को भी खुद पालता हूँ और मेरी अपनी बेटियां भी हैं। मुझे तो मेरे बेऔलाद माँ बाप ने गोद ले लिया था, मगर मेरे और बहन भाई भी थे। मेरे वालिद से घर पर काम करने के ढेरों रुपए देते थे। फिर भी मेरी हकीकत और हकीकी वालिद इन सब बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। मुझे याद आया कि इस रोज जब मेरे हकीकी वालिद मेरे कमरे में आए थे तो इन्हें देखते हुए जब मेरी नजरें नीचे गई थी तो इनके पैर देखकर मैं ठटक गई थी। इनके पैर बहुत बुरी हालत में थे और जूते इतने बोसीदा थे कि वह मुश्किल पैरों में अटके थे। पाँव की जगह जगह से जख्मी हालत भी थी। मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी तब। हम लोग अपने मुलाजमीन को इनकी तनख्वाह देकर फारिग हो जाते हैं और कभी ये नहीं पूछते कि वो किस हाल में है। मैं अपने हकीकी बाप को जलील करती रही थी और मुझे खबर तक नहीं हुई थी। मेरा बाप मेरी हिफाजत की खातिर रात की इस पहर भी मुझे देखने आता था और उल्टा मैं शकूक व शुबहात में पड़ चुकी थी। हकीकत जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गई थी। शुक्र करती हूँ कि नफ्स के बहकावे में आकर ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाया जो मेरे बाप की नज़र में ही मुझे शर्मिंदा करवा देता।